Hello viewers, I am Deepti. Today I am going to solve mathematics preparatory paper for ICSE class 10 given by KISA. अब KISA क्या है? KISA ICSE स्कूल एसोसिएशन मीन्स कर्नाटका ICSE स्कूल एसोसिएशन है जिसमें पूरे कर्नाटका के स्कूल इसी पेपर को फॉलो करते हैं. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ माय व्यूअर्स. तो मेरी ये सजेशन है कि आप सब भी इससे करें. इट विल गिव यू रिविजन, फुल रिविजन. और जिनका आज पेपर हुआ है उनके लिए आज मैं ये आंसर की सॉल्व करने जा रही हूँ. Now starting with question 1 from section A. Question 1 में आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है. If 73 is the nth term of arithmetic progression 3, 8, 13, 18. 3, 8, 13, 18 and 73rd is the nth term. It means an is equal to 73 है. फॉर्मूला क्या है? a plus n minus 1d. a is given as 3, n minus 1 we have to calculate. d is 8 minus 3 means 5. तो यहाँ पर आपके पास आंसर है 73. मीन्स करोगे तो 70 और डिवाइड बाय 5 करेंगे. n minus 1 करा आपने डिवाइड तो कितना आ गया आपके पास यहाँ से 5, 1 and 20, 14. So n is equal to 15. This is our option number C. So in first part, option number C is correct, which is 15. Now next is 7m plus 2n, ratio and proportion question. 7m minus 2n is equal to 5 by 3. तो जब ऊपर और नीचे में only difference plus minus sign का ही होता है तो we can apply componendo and dividendo. तो numerator plus denominator divided by numerator minus denominator is equal to applying on other side also numerator plus denominator minus denominator. Here 2n will get cancelled, you will get 14m. In the denominator you will get 4n is equal to 8 upon 2. It means 4. तो 14m है, हमें m और n का रेशो देना है तो m upon n is equal to 4 into यहाँ से हो जाएगा ये 14 upon n है, हमें m upon n देना है तो ऊपर जाएगा 4 upon 14. कितना आ जाएगा 2 and 7. It means 8 upon 7. So ratio is 8:7 and this is option number D. Option number D is correct in second part. Now in third part, a man invests rupees 24,000 invest किए गए हैं on rupees 60 share. It means nominal value या face value rupees 60 given है, discount 20%. तो 20% of 60. It means 20 upon 100 into 60. तो it means 12 rupees का discount है. Discount 20 rupees है. It means market value कितनी हो जाएगी 60 minus 12. It means यहाँ पर आपके पास कितना आ गया 48. तो number of share is equal to total money invested 24,000 and divided by 48. 24 to the 48,000. It means 500. तो number of share आपके पास 500 आ गए. Now next annual income हमें निकालनी है. If the dividend is 10%. तो income का फॉर्मूला आपको पता है. If you watch my video then NRF. N rate of dividend and face value upon 100. N number of share 500. Rate of dividend is given declared by the company is 10%. तो 10 upon 100 into face value. Face value आपके पास starting में है 60. तो कैलकुलेशन करेंगे 6 5 30. It means 3000. 3000 is option number C. तो option number C is correct in this case. Now in fourth part, one of the following point is invariant with respect to the line y is equal to -4. Invariant point कौन होता है? y minus 4 means 1 2 3 4. It means ये line हमारी यहाँ आएगी y is equal to -4. इनवेरिएंट मीन्स जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी इस एक्सिस से रिफ्लेक्शन लेने के बाद भी. तो अगर हम पॉइंट चेक करेंगे 3 4 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा. 3 -4 हमारा जो सेकंड पॉइंट आ रहा है वो हमारा यहाँ आएगा. 3 मीन्स x का 3 1 2 3 x का 3 और -4. इट मीन्स इस पॉइंट पर आएगा 3 -4 और ये पॉइंट हमारा इनवेरिएंट होगा क्योंकि अगर मैं इस लाइन को मिरर लेकर रिफ्लेक्शन लूंगी तो इस पॉइंट का यही आंसर दोबारा आ जाएगा. तो इट मीन्स ये हमारा इनवेरिएंट पॉइंट है. दिस इज ऑप्शन नंबर बी. बाकी ऑप्शंस अगर आप चेक करोगे तो गलत आ जाएंगे. नेक्स्ट कमिंग टू फिफ्थ क्वेश्चन. इनवेरिएंट पॉइंट का मतलब यही होता है जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता जो भी रिफ्लेक्शन की लाइन दी है उससे. मैट्रिसेस क्वेश्चन इज नेक्स्ट. A C B D and then Y and then P and Q. हमें ऑर्डर बताना है Y का. इसका ऑर्डर कितना है 2/2. इसका ऑर्डर कितना है 2/1. आपको पता है मल्टीप्लिकेशन कंपेटिबल तभी है जब इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे. तो ये दोनों तो इक्वल हो जाएंगे.
वहां पर 2 यहाँ से आया है और कॉलम कहां से आता है हमारे पास, यहाँ सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम से आता है, तो इट मीन्स इसका ऑर्डर कितना हो गया 2/1 एंड दिस इज अवर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन दिस केस 2/1. In next part, sum of probability of event and its complementary is event का हम जैसे लेते हैं possibility of event happening and not happening, तो दोनों की total probability हमेशा होती है 1 क्योंकि cumulative 100% ही हो सकता है, तो आंसर आएगा 1. This is option number B which is correct in this case. In seventh part, in a recurring deposit account, Virat deposit rupees 500 per month. इट मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट हमें 500 रुपीज का पर मंथ दिया. अभी ये एमसीक्यू है तो वर्किंग हमें अपने अकॉर्डिंगली करनी है, इसलिए मैं छोटी डिटेल्स जैसे रुपीज वगैरह नहीं लगा रही हूँ. पर मंथ आपके पास 24 है, यानी एन आपको नंबर ऑफ मंथ 24 दिया. इंटरेस्ट ही अर्न्स इज 1/10 ऑफ इट्स टोटल डिपॉजिट. तो इंटरेस्ट अर्न इज 1/10 ऑफ टोटल डिपॉजिट. डिपॉजिट कितना है, P इंटू एन, जितना आपने डिपॉजिट करवाया कितना है और कितने मंथ तक डिपॉजिट करवाया. तो इट इज 524 मंथ के लिए डिपॉजिट करवाया, तो आपका इंटरेस्ट अर्न हो जाएगा 24 इंटू 50, जिसमें आपके पास आंसर आ गया 5422 1200. तो 1200 का आपके पास इसके अंदर इंटरेस्ट आ गया. अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, I इज इक्वल टू P. हम सीधे वैल्यू डाल देते हैं. I का इंटरेस्ट हमारे पास है 1200 इज इक्वल टू P मीन्स 500 इंटू 24 इंटू 25 n+1 हो गया. रेट आपको बताना है 2, 12 और 100 आपके पास डिनोमिनेटर में है. 2 और 12 इससे कट जाएगा, ये इससे कट गया. 1200 डिवाइडेड बाय आपके पास 5 और 25 बच गया विच इज रेट. और जिसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका फ्रैक्शंस में आएगा, क्योंकि यहाँ 5 के साथ अगर इसको हम स्प्लिट कर देते हैं 12 इंटू 100 एंड 5 इंटू 25, तो 25 4 हो जाएगा एंड 12 4 इज 48 डिवाइडेड बाय 5. तो इट मीन्स 5 9s are 45 and 30. तो 9.6% is our rate, which is option number B. B is correct in this case. Now in 8th part, in the adjoining figure, O is the center of the circle, AB is a tangent to the point at point B. BDC 65 given है, we have to find BAO. BAO मीन्स ये हमें निकालना है, तो इसके लिए डायरेक्ट कोई ट्रायंगल हमारे पास अभी नहीं बनना जिसमें एंगल्स गिवन हो. वन थिंग वी नो डेट यहाँ पर ये, क्योंकि आपको रेडियस यानी डायमीटर गिवन है और ये टेंजेंट है, तो दे आर मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री. तो यहाँ पर दिस एंगल इज 90 डिग्री, बट उससे हमें पहले एक और एंगल यानी ये वाला पहले निकालना पड़ेगा. तो इन ट्रायंगल डीबीसी में ये एंगल कैलकुलेट कर लेंगे हम. एंगल सम प्रॉपर्टी 180 माइनस 90 प्लस 65 करके इसको निकाल लेंगे. तो आपके पास कितना आ गया 90 एंड माइनस 65 कितना आ जाएगा आपके पास 25. तो ये एंगल आपके पास 25 आ गया. दिस एंगल इज मेड बाय, कौन सी आर्क बना रही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बीई आर मेकिंग दिस एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, और यही बीई आर्क जब सेंटर पे बनाएगी तो ये एंगल इसका डबल हो जाएगा, इट मीन्स 50 हो जाएगा. तो इट मीन्स बीओई की वैल्यू 50 डिग्री आ जाएगी. 50 आ गई. नाउ वी कैन कम टू दिस ट्राइंगल एबीओ में आपके पास एक एंगल 90 है, दूसरा एंगल 50 आ गया, तो थर्ड एंगल आपके पास 40 आ जाएगा. तो एबीओ की वैल्यू फिर से एंगल्स में प्रॉपर्टी लगाएंगे 40 डिग्री आ जाएगा. एंड दिस इज अवर पार्ट नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट इन दिस केस. इन 9th पार्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग. तो आपको पता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा सिंपल है, इसको हम क्या सिंप्लीफाई करेंगे, tan को कर लेते हैं साइन अपॉन कॉस, प्लस कॉट को कर लेंगे कॉस अपॉन साइन. नाउ denominator we can take LCM sin theta cos theta, in the numerator sin square and then here cos square. Identity sin square theta plus cos square theta 1 आ गया. In denominator this is sin theta cos theta. Now you can come to this part of numerator, it means sin theta plus cos theta. Now taking them separately, we are taking sin theta upon sin theta cos theta and then cos theta upon sin theta cos theta. तो इट मीन साइन साइन कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन कॉस, और उस तरफ में कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन साइन. नाउ 1 अपॉन कॉस इज सेक थीटा एंड 1 अपॉन साइन इज कॉसेक थीटा. तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, दिस इज आवर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट इन दिस पार्ट 9. इन 10th पार्ट, नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर्स ईच ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर. तो एक तरफ हमारे पास स्फीयर है, डायमीटर की हमें जरूरत नहीं होती है, हम उसको डायरेक्टली रेडियस में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं. 6 है, इट मीन्स 3 सेंटीमीटर आपके पास रेडियस गिवन है. दैट कैन बी मेड बाय मेल्टिंग ए सॉलिड मेटल सिलेंडर. दूसरी तरफ हमारे पास सिलेंडर है ऑफ हाइट 45 सेंटीमीटर
all units are given in centimeter and here also diameter is given, it is 4, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब हमने इसको मेल्ट करना है। नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर्स हमने बताने कि कितने बने हैं। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू n एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज, क्योंकि फुल स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ से आपके पास जो जो चीजें वैल्यू हैं वो हमने फिल करनी है। सबसे पहले पाई को कैंसिल कर देंगे, n का आंसर। अब आर स्क्वायर एच सिलेंडर का क्या गिवन है, r इज 2 इंटू 2 एंड h इज गिवन इज 45। ये 4/3 नीचे आएगा यहाँ पर, तो 4 नीचे और 3 ऊपर, और आर क्यूब मीन्स स्फीयर का 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अब 3 इंटू 3 9, 9 5 45, 3 और 3 कैंसिल हो गया, 2 2 4, it means n is equal to 5. So 5 is option number C, which is correct in this part number 10. Now 11th part, quadrilateral ABCD is circumscribed to a circle, means circle हमारा बीच में है और इसके बाहर हमारे पास 4 फिगर यानी क्वाड्रिलेटरल है, शेप जैसी भी आएगी पर वो सारे उसको टच करेगा, मेन बात इसमें ये है। तो इसमें हमारे को गिवन है वैल्यूज, पहले हम इसको नाम दे देते हैं, दिस इज ए बी सी एंड डी, दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल। तो सर्कमस्क्राइब्ड हो गया टू ए सर्कल। नाउ ए बी इज गिवन एज 6, ये टोटल 6 है। तो अगर ये टोटल 6 है, नेक्स्ट वाले लिख लेते हैं, बी सी इज 7, टोटल 7 है, सी डी इज गिवन एज 4 एंड वी हैव टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ दिस ए डी पार्ट। तो हम यहाँ से किसी भी कॉर्नर से स्टार्ट कर सकते हैं, दिस इज एक्स, तो इफ दिस इज एक्स, दिस इज 6 माइनस एक्स। अगर आपको पता है कि टेंजेंट प्रॉपर्टी की एक्सटर्नल पॉइंट है और हम अंदर जा रहे हैं तो दोनों तरफ जो टेंजेंट आएंगी उनकी लेंथ इक्वल होगी। If this part is 6 minus x, then this part is also 6 minus x. मैं अभी लिख नहीं रही हूँ क्योंकि ये MCQ है तो हमें पता होना चाहिए 6 minus x है, एक टेंजेंट की लेंथ है तो दूसरे की भी इतनी ही होगी 6 minus x। अब यहाँ टोटल लेंथ कितनी है, 7 है, टोटल मिलाकर इसकी लेंथ 7 है, तो अंदर इट मीन्स ये हमारा, अगर मैं O भी मान लेती हूँ तो OC पार्ट की कितनी हो जाएगी, दिस लेंथ इज 7 minus 6 minus x, इट मीन्स कितना हो गया, 7 minus 6 is 1 and plus x, 1 plus x। Now if this part is 1 plus x, it means x plus 1। अब ये टोटल 4 है तो 4 में से 4 माइनस x and minus 1, यानी 4 minus 1 is 3 minus x। If this length of this tangent is 3 minus x, then this is also 3 minus x। और यहाँ से अगर ये tangent x है तो ये tangent भी x हो जाएगी। तो total length of AD is x plus 3 minus x, x and x will get cancelled and value is 3। तो आपका आंसर आ जाएगा 3 centimeter, which is option number A, which is correct in this case। In next part number 12, given figure is this, angle BAC is 90 degree and AD is perpendicular to BC। This is a given figure। तो हमें बताना है कौन सी ट्रू कैलकुलेशन है, तो उसके लिए हमें इस ट्रायंगल के दो पार्ट्स जो इजीली सिमिलर हो सकते हैं वो करने हैं। फॉर दैट यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ऑलरेडी है, किसी भी एक एंगल को वी कैन एज्यूम x। तो सपोज मैंने B को x एज्यूम कर लिया, अनदर एंगल विल बी 90 माइनस एक्स, तो C पे 90 माइनस एक्स आ गया। अब अगर हम हाफ ट्रायंगल लेते हैं तो दिस इज 90, दिस इज x, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स। अगर सिमिलरली हम इस हाफ को देखेंगे तो यहाँ पर ये एंगल x है तो ये टोटल यहाँ पर तो 90 ये भी है, तो इट मींस ये भी 90 माइनस एक्स हो जाएगा। तो अब हमें इसके दो हाफ्स बनाने हैं जिसमें से हम सिमिलरिटी इजीली निकाल पाएंगे। तो वन हाफ इज ADC, जिसको हमने बना लिया क्योंकि ADC में एक एंगल ऊपर x है और यहाँ पर C पर 90 माइनस एक्स है। इसी सिमिलर पैटर्न में हमारे को दूसरा ट्रायंगल भी ड्रॉ करना है, विच इज BD। यहां से चल रहे हैं हम, बी डी ए की तरफ आ रहे हैं, बी से डी की तरफ आएंगे, बी पे एंगल कितना बन गया, एक्स बन गया, और यहाँ पर ये वाला एंगल कितना हो गया 90 माइनस एक्स, ए पे आ गया। तो अब आपको दिख रहा है ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल सिमिलर बन गए हैं, बताने की जरूरत ही नहीं है, ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल हो गए, तो साइड प्रोपोर्शन में हो जाएंगी। तो कौन सी साइड आपको यहाँ पर प्रोपोर्शन में दिख रही है, ए डी। अगर मैं इस ट्रायंगल की साइड ले रही हूँ, ए डी इज इन प्रोपोर्शन विद बी डी। सेकेंडली अगर हम नीचे वाली साइड ले लेंगे तो सी डी एंड उसका कौन सा आ जाएगा वहां पर, ए डी। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एडी मींस एडी स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू सी डी इंटू बी डी, और ये हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी। तो इन दिस केस अवर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मैंने आपको पूरा समझाया कि किस तरह से आपने एंगल का पॉइंट लेकर इसको वेरीफाई करना है। In 13 part, Saurav purchases an article 5 rupees 5310 which included discount of 10% on mark price। mark price हमें given नहीं है तो let mark price is equal to x है, उसी को हमने कैलकुलेट भी करना है, बट डिस्काउंट हुआ है उस पर 10%। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क प्राइस में से 10% ऑफ x को हमने निकाल दिया, वही हमें पहले निकालेंगे, उसी पर जीएसटी लगेगी।
तो x माइनस 10 अपॉन 100x, इट मीन्स कितना हो गया यहाँ पर 10 माइनस 1 मीन्स 9/10x आ गया। अब 9/10x आ गया, इस पर जीएसटी लगनी है, तो जीएसटी कितनी हो गई 9/10x हो गया, और जीएसटी के रेट आपको गिवन है 18%, तो 18% ऑफ 9/10x कितना आएगा, टोटल आंसर इज 5310 विच इज गिवन इन द क्वेश्चन कि उसने उतना पे किया है कस्टमर जो कि सौरभ है। अब यहाँ पर इस कैलकुलेशन को थोड़ा केयरफुली करेंगे, 18/10 का मतलब यहाँ परसेंट का मतलब 100 हो गया, एंड 9/10x, इजी कैलकुलेशन के लिए वी कैन टेक 9/10x को कॉमन ले लिया, तो 1 + 18/100 अंदर रह गया, इट मीन्स 9/10x, और इनसाइड द ब्रैकेट इट इज 118/100 is equal to 5310. Now next step is x की कैलकुलेशन, 5310 into 1 2, ये 3 zeros ऊपर चला जाएगा, नीचे 9 into 118, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये पूरा कैंसिल हो रहा है, दिस इज 531 1 2 3 zeros आ जाएंगे ऊपर आपके पास, 4 zeros इनफैक्ट, 3 यहाँ है 1 यहाँ है, और 9 into 118 का आंसर आ रहा है 1062। क्यूमुलेटिव आप जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये एग्जैक्टली बन रहा है 5000, इट मीन्स आपकी मार्क प्राइस थी 5000 विच इज ऑप्शन नंबर बी, बी इज करेक्ट इन दिस केस, 5000 रुपीज। गिवन पॉलिनोमियल इज 2x क्यूब minus 3x square plus ax and then -9। आफ्टर कॉपिंग ऑलवेज चेक कि आपने ठीक कॉपी किया है या नहीं किया है। इज डिवाइडेड बाय x + 3, तो ये हमारे पास fx है, डिवाइडेड बाय x + 3 है, तो मीन्स हम यहाँ पर -3 लेंगे, और ये पूरा फैक्टर नहीं है, रिमाइंडर 6 बच रहा है, इट मीन जब हम उनको फिल करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर में 6 है। अब x की जगह पे वैल्यूज फिल कीजिए, -3 स्क्वायर प्लस a की जगह पे हमने लेना है, लेकिन x की जगह पे है, देन दिस इज -9, तो इट मीन्स 27 into 54 हो जाएगा माइनस का, देन -27, देन -3a -9 इक्वल टू 6, अगेन कैलकुलेशन, -7 4 is 11, 5 6 7 8 -81, देन -9, देन -6 is equal to 3a, कैलकुलेट करेंगे तो -81 -15 is equal to 3a, 6 and 96, -96 divided by 3 is the value of a, it is -32, -32 is option number D which is correct in this case. In last 15 part which is assertion reasoning, given two straight lines, 3x minus 2y is equal to 5 and 2x plus ky plus 7 equal to 0, तो यहाँ पर इसी तरफ ट्रांसपोज कर लेते हैं, -5 इक्वल टू 0, यहाँ से स्लोप क्या निकल जाएगी, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, तो m से हम स्लोप को डिपिक्ट करते हैं, m इज इक्वल टू होता है x का कोफिशिएंट डिवाइड बाय y का कोफिशिएंट, माइनस x का कोफिशिएंट इज 3 एंड y का कोफिशिएंट इज -2, इट मींस 3/2 इज द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन। इन सेकंड केस सेकंड स्लोप इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट मींस 2 और y का कोफिशिएंट इज k। मुझे पता है मैं ये फॉर्मूला लगा रही हूँ, ये आप अपने हिसाब से स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला फॉर्म से। मैं 11th में जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो यहाँ पर लगा रही हूँ, हमें निकालनी तो स्लोप ही है और वो सेम ही रहेगी। m इंटू एम डैश, आपको पता है अगर परपेंडिकुलर लाइन है तो आंसर -1 आना चाहिए, तो इट मीन्स 3/2 हमारा m है, और यहाँ पर से -2/k आ गया, इट इज इक्वल टू -1, तो k का आंसर कितना हो जाएगा, 2 विल गेट कैंसल, माइनस विल गेट कैंसल, तो k इज इक्वल टू 3, तो स्लोप आपकी 3 आ रही है विच इज गिवन इन द क्वेश्चन करेक्टली। इट मीन्स हमारा जो असर्शन है इट इज ट्रू, असर्शन ट्रू आ जाएगा। नाउ रीजन, if AB and CD are two mutually perpendicular lines and their inclination be alpha and theta respectively, then tan theta is equal to minus cot alpha। अगर मैं ट्रांसपोज करके उसको नीचे लेके आऊंगी तो tan थीटा है, cot का क्या मतलब होता है 1/10, तो 1/10 मीन्स tan ऊपर ही जाएगा, इट मीन्स tan अल्फा ही रहेगा इज इक्वल टू -1, और आपको पता है दोनों की प्रोडक्ट जो होता है m1 और m डैश का, ये m हो गया, ये m डैश हो गया, दोनों लाइंस की परपेंडिकुलर नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, तो -1 आ जाएगा, तो ये भी ट्रू है और इसका करेक्ट रीजन है, तो इट मींस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बोथ असर्शन एंड रीजन भी आपके पास ट्रू है, बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन 15 पार्ट। विद दिस ऑल एमसीक्यूज आर ओवर। Now starting with question number 2, solve x minus 1/x is equal to
3 विच इज नॉट इक्वल टू 0 और करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक लाना है। आपको इजीली दिख रहा है क्वाड्रेटिक है तो x आ गया, इट मीन्स x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3 है, x स्क्वायर इधर लाएंगे तो माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक बन गई। नाउ आप इसमें d को अलग से कैलकुलेट करके रखिए, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4a एंड c, दिस इज 9 प्लस 4 इट मीन्स 13। तो आपको अंडर रूट 13 की वैल्यू टेबल से देखनी है एंड इट्स वैल्यू इज 3.606। तो अभी हम बाद में यूज करेंगे, अंडर रूट 13 की वैल्यू हमने लिख के रखी है अपने लिए साइड में। नाउ कैलकुलेशन, x हमारा क्या है माइनस बी कितना है हमारा -3, तो माइनस -3 माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू इज 3.606 अपॉन 2 एंड ए हमारा यहाँ पर 1 नहीं है तो 2 ही रहेगा। इट मीन्स 3 प्लस 3.606 डिवाइडेड बाय 2 एंड 3 माइनस 3.606 डिवाइडेड बाय 2। 3 प्लस 3 करेंगे तो इट मीन्स 6.606 डिवाइडेड बाय 2 और माइनस करेंगे तो माइनस 0.606 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 2 3 6 303 एंड हेयर माइनस 0 पॉइंट फिर से कितना आया 303। तो ये दो आंसर आ गए बट करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक का है और 3 हमारा लेस देन 5 है, इट मीन्स हमारे रूट्स क्या बनेंगे 3.30 और माइनस का 0.30। 3 जो थर्ड डिजिट है उसको हम एज इट इज राउंड ऑफ कर देंगे और यही हमारी एग्जैक्ट वैल्यूज बन रही हैं इस क्वेश्चन के लिए। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क गिवन इन द पेपर, तो आपको बहुत ध्यान से करना, नहीं तो लास्ट का 1 मार्क आपका अगर उसने करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस का और आपने 3 में छोड़ दिया तो आपका 1 मार्क सीधा डिडक्ट हो जाएगा। इसमें स्टेप वाइज चेकिंग होती है, आपका पहला स्टेप का मार्क आपको मिलेगा जब आपने फॉर्मूले में एग्जैक्टली सब कुछ सब्सटीट्यूट कर लिया है। फर्स्ट मार्क आपको यहाँ मिलने वाला है वेयर यू हैव मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रॉपरली। सेकंड मार्क आपको यहाँ मिलेगा जहां आपने करेक्ट सब्सटीट्यूशन कर लिया है। थर्ड मार्क आपको दोनों रूट्स का मिलेगा और फोर्थ मार्क आपको उनको एग्जैक्टली राउंड फिगर करने का मिलेगा। तो 1 2 3 एंड 4 इस तरह से इसका बाइफर्केशन है मार्क्स का। Next question from GP, find the number of terms of GP whose first term is A is given as 3/4. Common ratio, it means R is given as 2 and the last term is 384. L is 384 and their sum, find their sum, वो हमने निकालना है। तो लास्ट टर्म को हम ए एन भी लिख सकते हैं, एल भी लिख सकते हैं, जो फॉर्मूला आपने लर्न किया उसके अकॉर्डिंगली कीजिए। ए एन इज इक्वल टू फॉर्मूला यू नो, दिस इज ए आर एन माइनस 1। A is 3/4, R is 2 and n minus 1 हमारा रहेगा क्योंकि we don't know what is the value of n. We know the final answer of this term. So now 2 raised to power n minus 1 here 384 into 4 upon 3. Cancel करिए, 3 1 जा 3 2 जा 3 8 जा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 32 3 4 to the 8 9 10 11 1 4 1 4 और 5 5 and 2, तो 2 raised to power n minus 1 is equal to 5 and 2 और 5 and 2 क्योंकि हमारे यहाँ बेस 2 है तो हमें 2 की ही बेस में बनाना है, तो 2 की ही बेस में आपको बनाकर लेकर आना है इसको। इट्स वैल्यू इज 9, 2 raised to power 9, तो दोनों की बेस सेम हो जाएगी तो n minus 1 is equal to 9, इट मीन्स n का आंसर आ गया आपके पास 10, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 10। सम ऑफ दीज 10 टर्म्स Sn is equal to formula is A R n minus 1 upon R minus 1. R is greater than 2. It means हमें R minus 1 वाला ही फॉर्मूला लगाना है। Now this is A is 3/4, R means आपके पास 2 है, 2 raised to power n means 10 है, minus 1 upon नीचे 2 minus 1 which is equal to 1, तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। हमने न्यूमिनेटर को सॉल्व करना है। दिस इज 3/4 and 2 raised to power 10, 2 raised to power 10 वैल्यू इज 1024 and minus 1, इट मीन्स 1023 into 3 and divided by 4। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3069 and divided by 4। कैलकुलेशन करेंगे तो 767 1/4 आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है क्योंकि सम है, सम ऑफ 10 टर्म्स है तो वैसे फ्रैक्शन में आना नहीं चाहिए बट कोई बात नहीं, हमारे पास आ रहा है तो हमें मिक्स फ्रैक्शन में यहाँ पर आंसर देना है। दिस इज 767 1/4, ये फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर पे आपको 4th मार्क मिलेगा। इसके अलावा आपको एक एक मार्क एक एक स्टेप का मिलते जाना है, आपको पता ही है। यहाँ पर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स मीन्स आप जब फॉर्मूला को प्रॉपरली सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, जैसे आपने यहाँ पर इस फॉर्मूला को सब्स्टिट्यूट कर लिया 2 raised to power n minus 1, तो यहाँ पर आपका इस स्टेप पे 1 मार्क आपको मिलेगा।
मीन्स ये वाला स्टेप जिसमें आपने इक्वल टू 384 कर दिया, दिस इज फॉर 1 मार्क। उसके बाद फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट होने के बाद आपका जब आंसर निकल जाएगा n इज इक्वल टू 10, देन यू विल गेट सेकंड मार्क। सब्स्टिट्यूशन के बाद आपको 1 मार्क और मिल जाता है। अगर आप करेक्टली सब्स्टिट्यूट करते हैं यू विल गेट 1 मोर मार्क एंड एट द एंड यू विल गेट द 4th मार्क। Now a question from linear inequations. So here mixed fraction में given है तो 6 and 5 it means minus 11 by 6 and less than 3 by 2 minus 2x by 3. फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। नाउ सेकंड पार्ट इज 3 by 2 minus 2x by 3 less than and equal to 3. We will solve them separately. So minus 11 by 6 is already here. Then minus 3 by 2 less than minus 2x by 3. अभी हमने इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है। हेयर एलसीएम इज 6, सो माइनस 11 माइनस 2 3 6 एंड 9, हेयर माइनस 2x बाई 3, सो माइनस 20 बाई 6 इंटू 3 ऊपर और माइनस 2 नीचे। बिकॉज हम नेगेटिव टर्म को इधर ला रहे हैं तो दिस साइन विल गेट रिवर्स। तो यहाँ पर आपके पास माइनस साइन नीचे तो आ गया बट यहाँ एक्स रहने का मतलब है हमने इसको माइनस को इस तरफ लेकर आया है। इट मीन्स 2 10 माइनस माइनस कैंसल और 3 2 6 और 2 5, तो इट मीन्स x इज लेस देन 5, माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, x इज लेस देन 5 ये फर्स्ट टर्म का जिसके लिए आपको 1 मार्क यहाँ पर मिलेगा अगर आपकी ये वैल्यू करेक्ट है तो। नेक्स्ट इज माइनस 2x बाय 3 less than and equal to 3, we will get transpose 3 by 2 to that side, so it will become 2, LCM is 3 to 6 minus 3, it means 3 by 2 and then here again minus term मेरे पास है यहाँ पे तो x लेना है तो नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगा एंड देन दिस विल बिकम 3 by 2 और माइनस को उस तरफ लेकर गए तो माइनस रहेगा लेकिन साइन हमने देखिए इंटरचेंज कर दिया है। दिस इज 9 by 4 तो एंड माइनस 9 by 4 तो x इज ग्रेटर देन एंड अभी आप देखेंगे यहाँ पर इक्वल टू का साइन सबके साथ में रहना है तो वो रखना ही पड़ेगा हमें। माइनस मिक्स फ्रैक्शन में लाएंगे तो 4 to 8 मीन्स 2 1 by 4 ये आपके पास आ रहा है। लेकिन अब क्वेश्चन जो है वो होल नंबर को ही बिलोंग कर रहा है तो होल नंबर मीन्स आपका सोल्यूशन सेट कैसे बन जाएगा, x is such that x is a whole number है तो होल नंबर में आपके पास क्या आएगा, x is greater than and equal to ये वाला नंबर आ रहा है मीन्स माइनस 2 1 by 4 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू और लेस देन आ जाएगा आपके पास 5। तो इस तरह से आपके पास सोल्यूशन सेट बना जिसको अगर आप लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में तो आंसर, क्योंकि हमारे पास ये वाले वैल्यूज तो आने नहीं है, नेगेटिव वाली होल नंबर का मतलब है जीरो से स्टार्ट करना है तो इट मीन 0 1 2 3 4 और 5 के नीचे भी इक्वालिटी का साइन नहीं है तो वी विल नॉट इंक्लूड 5 तो 0 1 2 3 4 ये आपके पास आ जाएगा। सेकेंड फर्स्ट मार्क आपको यहाँ मिला, सेकेंड मार्क यहाँ कैलकुलेशन और सॉल्यूशन सेट बनाने पे आपको एक नंबर और मिल जाएगा। नाउ वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस ऑन द नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन वी हैव टू टू एक्स्ट्रा पॉइंट, जैसे हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है बट वी विल शो -1 एंड -2 ऑल्सो ऑन द नंबर लाइन, देन 1 2 3 4 और 5 चाहे आएगा नहीं लेकिन हमें 5 और 6 शो करना है 1 2 3 एंड 4। अब क्योंकि ये होल नंबर है तो लाइन तो पूरी लेनी नहीं है, होल नंबर हमारा स्टार्ट ही कहां से होगा 0 से, देन 0 1 2 3 एंड 4 ये 5 ब्लैक डॉट्स आपने दिखाने हैं और लाइन को लेके दोनों तरफ एरो भी दिखाना है तभी आपको ये इसका पूरा मार्क मिल पाएगा यानी कि लास्ट 4th मार्क। तो 1 2 3rd फॉर सॉल्यूशन सेट एंड 4th फॉर नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली हम मान के चल रहे हैं कि सेक्शन ए का सबसे मुश्किल क्वेश्चन, फाइनल बोर्ड में भी इसी तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में ही सबसे मुश्किल क्वेश्चन होगा क्योंकि ये कंपलसरी सेक्शन में भी है और मोर ओवर लास्ट ईयर भी यहीं पर आकर हर स्टूडेंट के जो 100 या सेंटम डिजर्व कर रहे हैं वो नंबर कटवा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन से चैप्टर से होंगे, आप मेरी वीडियोस देख के इतना समझ होंगे, मैंने बहुत बार क्लियरली ये बात बोली है, आपको रिवील करी है कि हम क्वेश्चंस पूरा ऐसे नहीं मान के चल सकते। हाँ बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर उसी चैप्टर से आते हैं बट नॉट ऑल। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम प्रोबेबिलिटी, पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन, तो कितने कितने आ रहे हैं 100 आ रहे हैं, दीज आर 50 पैसा कॉइन, हमें पूरी डाटा को लिखना है पहले। 50 1 रुपी कॉइन तो ये 1 रुपी कॉइन है, देन नेक्स्ट इज 20 2 रुपीज कॉइन, 20 के 2 रुपीज कॉइन है, देन 10 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपी कॉइन है, रुपी वैसे पहले लिखना है। इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, तो एक कॉइन बाहर गिरना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द कॉइन फॉलिंग आउट विल बी। अब 50 पैसा कॉइन, तो 50 पैसा कॉइन टोटल कितनी है, पहले टोटल सबको चेक कर लेंगे कि टोटल हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल कॉइन्स कितने हैं, टोटल कॉइन्स आर, सबको प्लस कीजिए 0
5 6 7 8 180, तो 180 आपके पास टोटल आ गए। अब सबके अंदर एक ही फॉर्मूला लिखना है, मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जो भी आपके पास आ रहा है, जैसे उसने बोला 50 पैसा कॉइन, तो जो हम चेंज करते जाएंगे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes divided by total number of all possible outcomes, total number of all possible आउटकम्स। ऊपर भी लिखना है, नीचे भी लिखना है। ये फॉर्मूला एक बार नहीं, आपने बार बार लिखना है, जितने पार्ट्स हैं, लेकिन मैं नहीं लिख रही हूँ इसके बाद के लिए। अब हमारे पास आ गया पहले 50 पैसा कॉइन के लिए, तो कितने हैं 50 पैसा कॉइन? 100 है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम मींस टोटल कॉइन्स कितने हैं? इट इज 180। दिस मींस कैंसिल कर देंगे, 2 5 एंड 2 9, तो आंसर इज 5/9। प्रोबेबिलिटी है, आराम से फ्रैक्शन में हो सकती है, और यहाँ का आपको 1 मार्क मिल जाएगा। सेकेंड पार्ट इज अ वैल्यू मोर देन ₹1, तो मोर देन ₹1 मतलब 1 नहीं आएगा, 2 और 5 के कॉइन आएंगे, और 2 और 5 के कितने कॉइन्स हैं? तो आप यहाँ पर जो भी प्रोबेबिलिटी है वो लिखते जाएंगे, इज इक्वल टू यहाँ 20 प्लस 10 ऐड हो जाएगा, यानी कि 30 अपॉन टोटल कितने हैं? 180। इट मीन 3 6 80, तो 1/6 की प्रोबेबिलिटी होगी, इसका आपको सेकंड मार्क मिल जाएगा। इन सी पार्ट अब वैल्यू लेस देन ₹5, 5 से नीचे वाले तो कितने हो गए? बाकी सारे हो गए, 5 को छोड़ देते हैं, तो दिस इज 170। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 5 कितना हो गया? ऊपर कितना है? 170 डिवाइडेड बाय 180, इट मीन 17/18। इसका एक और मार्क यानी कि थर्ड मार्क भी मिल जाएगा आपको, अगर आपने ये ठीक लिख दिया। नाउ लास्ट इज डी पार्ट, और ₹1 और ₹2 कॉइन। अब ₹1 और ₹2 कॉइन कितने हो गए? ₹1 वाले कितने हैं और ₹2 वाले कितने हैं? 50 और 20, और में भी हमने इनको क्या करना है? प्लस ही करना है, 50 और 20, तो 50 और 20 के लिए कितना हो गया? 70। 70 अपॉन टोटल कितना हो गया? 180। इट मीन 7/18। दिस इज योर लास्ट फोर्थ मार्क ऑफ दिस क्वेश्चन। आपकी सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट ठीक से होनी चाहिए। ये फॉर्मूला आपने हर एक में कॉपी करना है, ये एमसीक्यू नहीं है, हम छोड़ नहीं सकते। फॉर्मूला हर में लिखेंगे, उसके बाद उसका करेंगे कैलकुलेशन, तभी आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे मार्क्स मिल पाएंगे। Now part number 2 from mensuration. A vessel is in the form of a hemispherical ball mounted by a hollow cylinder of negligible thickness. The diameter of the hemisphere is 14 है, और हमने रेडियस लेना होता है, इसलिए हमने इसको डायरेक्टली 7 लिख लिया। कॉपी करते टाइम ही डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट कर लीजिए। डायमीटर आ गया 14 से 7, द रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज, टोटल 13 गिवन है, तो यहीं से पहले हाइट निकाल लेंगे। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी निकल गई आपके पास? यहाँ पर हाइट ऑफ सिलेंडर इट इज टोटल 13 है, बीच में से इसकी जितनी है नीचे। अब रेडियस तो दोनों तरफ सेम होगा, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 रहेगा, तो 13 माइनस 7, इट मीन हाइट इज 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो सिलेंडर की हाइट 6 आ गई। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, हाँ, टोटल हाइट ऑफ वेसल, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ वेसल। कैपेसिटी मींस आपको इनकी वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। वॉल्यूम मींस वॉल्यूम ऑफ टोटल वेसल इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, पूरा लिखेंगे। सिलेंडर की वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच। बाई चांस दोनों का रेडियस सेम है, तो वी कैन यूज द सेम सिंबल आर, हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, नहीं तो एक आर छोटा और एक कैपिटल लेना था। अब हेमीस्फीयर आ गया, हेमीस्फीयर की वॉल्यूम इज 2/3 पाई आर क्यूब। आप दोनों में से जो चीज आपको कॉमन दिख रही है, तो आप इजी कैलकुलेशन के लिए उसको बाहर ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर पाई भी है और आर स्क्वायर भी है, वो आप बाहर ले लीजिए। फर्स्ट में एच इज इनसाइड एंड देन 2/3 पाई आर स्क्वायर बाहर गया और एक आर अंदर रह गया, तो it will make your calculation part a little bit easy. So 22/7 and r radius is 7, so 7 into 7, height is 6 plus 2/3 into 7, तो it means यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 14/3। तो 14/3, अब मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है कि मैं पूरी कैलकुलेशन आपको दिखा पाऊँ। दिस इज 7 to 14, 1 7 to 14 15, तो 154, और अंदर हम एलसीएम लेंगे। दिस इज 3 18 plus 14, इट मीन्स 154, सो कैंसिल कर, नहीं कैंसिल ही नहीं होगा। 154 इंटू 8 4 इज 12, 32/3, 154 इंटू 32/3 कैलकुलेशन करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में ही आपको लाना है। दिस इज 1642/2/3, ये पार्ट आ रहा है आपके पास। और क्योंकि ये वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब आप पूरा लगाएंगे, तभी आपको 1 मार्क मिलेगा। 1 मार्क सब्स्टिट्यूशन पे मिल चुका है, सेकंड मार्क इसका आपको यहां पर मिलेगा। कैपेसिटी के 2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट इज इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। सरफेस एरिया मींस हमें अंदर का सरफेस एरिया लेना है, तो सिलेंडर का तो 2 पाई आर एच है सरफेस एरिया
of cylinder plus surface area of hemisphere. Now cylinder is 2 pi r h and surface area of, क्योंकि half है hemisphere तो it means 2 pi r square. Again we can take 2 pi and r common and inside the bracket it is h plus r. Now 2 into 22 by 7 into r is 7, h is 6, 6 plus 7. Now 7 7, this is 44 and this is 13. 44 into 13 multiply करेंगे, this is 572 and now this is surface area, so unit is centimeter square. Now you will again get first mark after substitution and then last fourth mark यहाँ पर आ जाएगा. एक सब्सटीट्यूशन के बाद है, एक आंसर के बाद है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आफ्टर सब्सटीट्यूशन एंड फोर्थ 572 के बाद मिलेगा आपको. इफ दिस होल इज करेक्ट देन यू विल गेट 4 मार्क्स फॉर दिस आंसर. Next question from the topic reflection. Plot point A 0 4. 0 4 means 0 है और 4 means y का point है. This means A point आ गया हमारे पास 0,4. ये A point है. Now next B is 1 2. 1 means x का 1 and y का 2. It means this point is B. Its value is 1,2. Now next is E. E is 0,1. 0 x का है और y का 1 है. It means this point is E 0,1. Then next is C 3 3. 3 and y का भी 3. So this point is this C 3,3. Then next is H 3,0. 3,0 means it should lie on the x-axis itself and this point is H with 3,0. Then reflect B, C and H in the y-axis. B, C and H. पहले B को रिफ्लेक्ट करेंगे, एक डिजिट इधर है तो एक ही डिजिट इधर आएगी, y एक्सिस से रिफ्लेक्ट करा, दिस इज B डैश, y से रिफ्लेक्शन हो गया यानी बी वाई भी लिख सकते हैं. C के लिए C पॉइंट को रिफ्लेक्ट करेंगे तो C3 इधर है तो 3 इधर आएगा इसी लाइन में -3 पे, तो C के पॉइंट C डैश के पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, इसका पॉइंट क्या आ गया -1 और x के y के लिए आपके पास 2 ही रहेगा. सिमिलरली यहाँ पर इसका x का पॉइंट चेंज हो गया -3 और y का पॉइंट (3) ही रहेगा. दिस इज C डैश एंड देन H ऑल्सो. H को करेंगे तो H का यहाँ पर 3 0 है, यहाँ पर -3 0 आ जाएगा. H पॉइंट इज -3, 0. नाउ ये y एक्सिस के हो गए. रिफ्लेक्ट BCH इन द y एक्सिस टू D F एंड G. हमें नाम देने थे D F एंड G, तो हमें इनको B को जो मैंने B डैश दिया है, दिस इज D, दिस इज D, दिस इज F एंड दिस इज G. जो जो नाम उन्होंने दिए हमें वो चेंज नहीं करने, अगर उन्होंने गिवन है तो हमें वही लेने, D F एंड G रिस्पेक्टिवली. एंड रिफ्लेक्ट E इन द x एक्सिस. वेयर इज अवर E पॉइंट? E x एक्सिस से रिफ्लेक्ट करेंगे तो नीचे आएगा, दिस मीन्स ये, और इसको क्या बनाना है, टू J. तो J बनाया x एक्सिस से, तो आपका x वाला पॉइंट तो 0 ही रहा और y पे आपके पास आ गया -1, तो 0, -1. राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिफ्लेक्टेड पॉइंट, जॉइन A B E D A. अब इसी सीक्वेंस में लाना है आपको, A B E D A. A से B, A B, then E, then D and then A. So this is A B D A and also E C H. E C and H. E point E ये है, E से C की तरफ जाना है आपने, स्केल से बनाएंगे एग्जैक्टली E C and then H. नीचे आना है आपको H, तो स्ट्रेट लाइन आएगी आपके पास. दिस नेक्स्ट टू J, J के पास आएंगे. नेक्स्ट इज G, G and join G and J and then F. F means again a straight line, vertical line and then E. E means हमें फिर नीचे आना है. So this is our figure. In order and name the geometrical figures separately. स्केल आपने 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लेना है, वो आपको ग्राफ वही मिलता है, दोनों एक्सिस के लिए वही यूनिट आपने लेना है. तो ये सारे पॉइंट्स हमने बना लिए. नाउ अपने इनको फिगर्स को नाम देना है, सेपरेटली नाम देना है. तो पहला जो आपके पास फिगर बन रहा है A B E D A, दिस फिगर इज, इसकी शेप किसकी आ रही है, काइट की आ रही है, लेकिन हम काइट ना देखें क्योंकि काइट हमारा कोई ज्योमेट्रिकल आंसर नहीं है. आप हो सके तो इसको जितनी साइड्स होती हैं उसमें नाम दीजिए. कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4, तो 4 साइड्स हैं, तो ये हमारा 4 साइडेड पॉलीगन हो गया. यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 4 साइडेड पॉलीगन. हालांकि ये शेप हमको काइट की दिख रही है क्योंकि ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल है, तो काइट भी दे सकते हैं एंड देन 4 साइडेड पॉलीगन, तो क्वाड्रिलेटरल हो गया आपके लिए.
तो ये वाला आ गया कोऑर्डिनेटर। नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट शेप इज, जो हमने ये नेक्स्ट वाला दिया था EC वाला। ना EC ये वाला फिगर देखेंगे, ACHJN कितनी साइड बन रही हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, तो 6 साइडेड है और अंदर की तरफ बेंड हो रही है। इट मींस ये कौन सा हो जाएगा, कॉनकेव हेक्सागन आ जाएगा। दिस इज कॉनकेव क्योंकि अंदर की तरफ जा रहा है और 6 साइड्स हैं इसलिए हेक्सागन। 6 साइडेड फिगर है, 6 साइडेड पॉलीगन भी हम आपको इसको लिख सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपके ठीक होंगे तब आपको पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि दिस इज ए 5 मार्कर क्वेश्चन। अगर इनमें से कोई 3 पॉइंट ठीक होंगे तो आपको सिर्फ 1 मार्क मिलेगा, और D, F और G जब आपने इनके रिफ्लेक्शन वाले पॉइंट्स बना लिए उसके बाद एक और पॉइंट मिलेगा। तो पॉइंट्स जो है वो बाइफरकेट होकर आपको मिलेंगे, 5 मार्क्स डायरेक्टली पूरे क्वेश्चन के ठीक होने के, और आंसर का जो आपको शेप का नाम देना है वो एग्जैक्ट होने के बाद पूरे 5 मार्क्स आपको मिल पाएंगे। और रॉन्ग स्केल चूज करने पे भी आपका -1 हो जाएगा। With this, I conclude section A. I will try to make for section B also, because we all know कि this year mathematics paper will be very difficult for my students. तो मैं उनके लिए जो कर पाऊंगी वो करूंगी, इसलिए कोशिश करूंगी कि section B के लिए वीडियो भी जल्दी ही अपलोड कर पाऊं। Thanks for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहती हूँ, for few of my videos you have to become a member of my channel. And if you want to improve your mathematics concept, then you can join my crash course also. Details are given in the description box. You can go to the contact number and then you can message me if you really want to improve your mathematics. Thank you for watching till the end.